एक तो ये है कि टैक्सेशन बहुत कम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आइटम्स पे लगेगा, एसेंशियल आइटम्स पे 0% टैक्सेशन होगा, तो उसका फायदा मिलेगा। दूसरा, टैक्स बेस बढ़ेगा, इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ेगा, शायद भारत में ये देखने को मिलेगा। आरसी भार्गव जी हमारे साथ लगातार हैं। सर, अब जीएसटी बिल पास तो हो गया, लेकिन जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, बाकी जो प्रोसीजर बाकी है, आपको लगता है कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर एक बात नहीं बन पाई है? चलिए हम आरसी भार्गव जी के पास जाएंगे, लेकिन अभी सीधे चलते वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास। Parties and national parties have actively supported it. The proceedings have culminated to demonstrate to the world that this is a great day both for Indian democracy and Indian federalism. In fact, Indian democracy and Indian federalism are at their very best, in as much as all national political parties and regional parties, all state governments have come together to usher a major taxation reform. On behalf of the government, I express my deep sense of gratitude to all the political parties which have actively participated in this discussion and supported this reform. The government's approach also was to build a larger consensus, which we succeeded in doing. We now propose to take some of the additions and amendments which have been made to the bill as approved by the Lok Sabha back to the Lok Sabha very soon, subject to the directions of the Speaker, so that the Lok Sabha also can approve the bill and then it can go to the states for ratification. Once the GST is implemented, it will bring basic changes as far as the Indian tax structure is concerned. It will convert India into one unified market with one unified tax in the country. It will improve the base of taxation. It will make evasion extremely difficult. And I think the center and the state governments in future will have to work together in order to make this a great success. Overall, I think it was an excellent debate in which almost every member has contributed to it. And as I just stated earlier, this is Indian democracy and federalism both at their very best. Thank you. आज ये महत्वपूर्ण अवसर है इस देश के लिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण टैक्सेशन रिफॉर्म, कर व्यवस्था में सुधार संसद ने पारित किया है। महत्व का विषय ये है कि ये सुधार सर्वसम्मति से पास हुआ है। लगभग हर राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया है। राज्य सरकारों के बीच में भी एक आम राय थी और उन्होंने भी इसका समर्थन किया, और इसलिए इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संघीय ढांचा, उसकी जो ताकत और शक्ति है वो पूरे विश्व के सामने आज स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि देश हित में सभी राजनीतिक दल, सभी राज्य सरकारें एक आवाज़ में आम राय बन जाए तो एक दिशा में जा सकती हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों का और राज्य सरकारों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कानून का उन्होंने समर्थन किया है। इसको अब हम लोग लोकसभा में लेकर जाएंगे और स्पीकर साहिबा से डायरेक्शन लेकर जितनी शीघ्र ये आ पाएगा उतनी शीघ्र इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। So what is the realistic implementation date according to you? Well, so do you think April 2017 is achievable? I think we'll move systematically. Right. There is still a long road to be covered. It has to be approved by the Lok Sabha, the changes. Then it has to be ratified by the state assemblies. Right. Then the GST Council has to be constituted. The GST Council then would in turn be preparing the drafts, which under the present constitutional amendment will go before the Parliament and also the state assemblies in respective cases. They will then settle the rate of taxes. There are some procedural issues which are to be solved. आपने अभी वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुना। अभी हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जीएसटी पर समर्थन के लिए सभी दलों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ऑन दिस ट्रूली हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ द पैसेज ऑफ द जीएसटी बिल इन द राज्यसभा, आई थैंक द लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ ऑल पार्टीज। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार भी लगातार इस डिस्कशन में बनी हुई हैं। वृंदा, आपने शुरुआत से अब तक हमारे साथ आप बनी रही हैं और किस तरीके से अब जीएसटी बिल को पास होने के बाद एक खुशी का माहौल है। अरुण जेटली कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, इंडियन फेडरलिज्म के लिए, और खुद प्रधानमंत्री भी तमाम रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात करें, सभी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
आपसे जानना चाहेंगे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात हुई थी कि जहां जहां जिन कंट्रीज में जीएसटी बिल आया है वहां पर महंगाई बढ़ी है, वर्सेस इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा, इसको कैसे समझाया जाए? पहले तो जैसे 91 में जब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश हुआ था, कितना मेजर डिसीजन था वो, और उसका इम्पैक्ट देखिए आज इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है कि कितना ग्रोथ बढ़ रहा है। तो ये जो आज का मेजर है ये इतना ही इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट, 1991 जैसा इक्वली इम्पोर्टेंट मेजर है। इससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म में शायद मे बी देयर सम लाइकली इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, क्योंकि कुछ गुड्स पे जो टैक्सेशन रेट्स जब इसको जब रैशनलाइज करेंगे उससे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन गुड्स पे तो घटेगा, लेकिन सर्विसेज पे शायद बढ़ सकता है, क्योंकि सर्विसेज पे जितना देयर वर सम सर्विसेज व्हिच आर नॉट टैक्स्ड, और इंडिया even more satisfactory. some increase in inflation, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन तो जरूर कम होगा, क्योंकि टैक्स बेस बढ़ेगा, गवर्नमेंट की कलेक्शन इंप्रूव होगी, गुड्स में एफिशिएंसीज आएंगी, एंड इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। सो इन्फ्लेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, फिस्कल डेफिसिट के लिए, फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ व्यू ये सारे पॉइंट्स होल पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा वेलकम कदम है ये। They have said, I believe, that whether they will bring it as a financial bill or a money bill will be discussed with the Congress party. Are you satisfied with the government reply, sir? It's half a promise, therefore I'm half satisfied. जी, यहाँ पर मैं अपने सहयोगी गौरव अग्रवाल को इस पूरे डिस्कशन में शामिल करना चाहूंगी। जी गौरव, आपने सुना चिदम्बरम क्या कर रहे थे, देव मेड हाफ प्रॉमिस एंड आई एम हाफ सेटिस्फाइड। मतलब वो अभी भी कह रहे हैं कि सरकार को ये करना पड़ेगा कि इसको मनी बिल ना लाके फाइनेंस बिल लाए, और कांग्रेस इस पर लगातार अड़ी हुई है। और सवाल ये भी है कि आज लगातार जो अंतिम दौर की बहस थी वो इसी पे थी। वो कह रहे हैं कि आप फाइनेंस बिल लाएंगे, आप मनी बिल नहीं लाएंगे, और अरुण जेटली कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल जब बनेगी, जब ड्राफ्ट तैयार होगा उसके बाद हम बता पाएंगे, अभी हम कैसे बता दें। और इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं। जफर इस्लाम भी मेरे साथ हैं। जफर इस्लाम, ठीक है, जीएसटी काउंसिल बनेगी और आप कांग्रेस अभी भी आपके ऊपर टकटकी लगाए हुए कि आप उनसे, साफ है उनका ये कहना है कि आप हमको बिना दिखाए आप बिल नहीं पास कर देंगे, जैसे आपने आधार पास कर दिया मनी बिल के तौर पर। मानेंगे कांग्रेस की इस बात? देखिए, बड़े साफ लफ्ज़ों में हमारे वित्त मंत्री ने इस पर टिप्पणी की है। जब कपिल सिब्बल जी, चिदम्बरम जी और गुलाम नबी आज़ाद जी ने इस बारे में हमारे वित्त मंत्री से पूछा, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बिना आपसे दिखाए बिल पास नहीं करेंगे। अब ये फाइनेंस बिल और ये मनी बिल की तरह पेश किया जाएगा, इस बारे में अभी जब ड्राफ्ट ही नहीं रेडी है तो उस बारे में ठीक है, ड्राफ्ट रेडी होगा तो आप कांग्रेस से इस बारे में सहमति लेंगे, आप पूछेंगे, ये कहते हैं आप? ये इन्होंने तो कहा, वित्त मंत्री ने कहा भाई आपसे सलाह लेंगे इस बारे में, ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में कहा। 203 वोट पड़े हैं सर, एक वोट भी आपके खिलाफ नहीं पड़ा है, वाकई उपलब्धि है आपके लिए। ये किसको श्रेय देंगे? कांग्रेस को देंगे, अपनी पार्टी को देंगे, तो तमाम रीजनल पार्टीज को देंगे, किसको जाता है इसका श्रेय? देखिए, मैं इस पे दो बातें कहूँगा। एक तो ये कहूँगा कि सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया। हमारे लीडरशिप पे, हमारे प्रधानमंत्री की जो विजन थे उस पर कॉन्फिडेंस दिखाया, और देश के हित में जो बिल पास होना चाहिए था उसको पास किया। इसलिए किसी एक पार्टी के लिए किसको जिम्मेदार या सेहरा नहीं देना चाहता। हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोगों के सपोर्ट से बिल पास हुआ, और सभी लोगों को इस बिल का जो भी श्रेय जाता है पास करने का सभी लोगों को जाता है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से 100% यूनानिमसली जो पास किया गया है, कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि पूरी अपोजिशन, एवरी MPs, एवरी पार्टीज have demonstrated their support to our honorable Prime Minister. Except AIADMK. हाँ, उनका क्या जयललिता से बात नहीं हो पाई, या जयललिता तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए? नहीं, देखिए, बात तो हम लोगों ने सभी पार्टीज को एंगेज किया, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो बड़ी पार्टियां हों, लेकिन ये उनका अपना फैसला था, ये जानते हुए भी कि बिल पास हो जाएगा, फिर भी उन्होंने ऐसा फैसला लिया, तो शायद उनकी कुछ कंस्ट्रेंट रही होगी। मैं उस पर अब फर्दर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज ये खुशी का मौसम है, खुशी का दिन है, और अच्छी बातें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज हिस्टोरिक डे है, यहाँ से हमारी जो इकोनॉमी है टेक ऑफ करेगी। 24 जुलाई 1991 एक हिस्टोरिक डे था, जब इंडिया में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था, और बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने वहां पर अपना बजट रखा था।
3 अगस्त 2016 एक दूसरा हिस्टोरिक डे है जब बतौर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल राज्यसभा में पेश किया और जीएसटी अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा ने अपनी नोट दी और जीएसटी अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से पास हुआ है। तो क्या ये माने कि बीजेपी के पास एक और उपलब्धि है आप बताने के लिए कि बीजेपी की सरकार ने देश को जी वाकई गौरव, यहाँ पर हम जरूर आपके पास फिर से आएंगे। राजेश जी हमारे एडिटर इनपुट यहाँ पर लगातार है, वो इनफैक्ट कुछ पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम माधव जी से ये सवाल करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि जो एसएमई सेक्टर है उसके लिए इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा, लेकिन सर क्या आपको ये नहीं लगता है कि इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन अब एसएमई सेक्टर को जो पहले 5 इंस्पेक्टर से साथ डील करते थे अब सिर्फ 1 इंस्पेक्टर से उनको डील करना पड़ेगा, जो अलग अलग टैक्सेस देते थे अब सिर्फ 1 टैक्स देना पड़ेगा, तो वहां उनका कॉस्ट कम होगा, तो ओवरऑल एसएमई सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा रादर देन कॉम्पिटिशन कॉस्ट आप जो बोल रहे हैं वो लगेगा? देखिए, इसमें ये क्लियर है कि ओवरऑल ये इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा है और ये कदम बिल्कुल लिया भी जाना चाहिए था। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था वो था कि ट्रांजिशन में ना सिर्फ ये गवर्नमेंट ने तैयारी करनी होगी बट के इसमें जो एंटरप्राइजेज हैं, ख़ुसूसन जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनको भी जीएसटी रेजीम में अपने आप को ढालना होगा और उसमें एक कंप्लायंस जो है इनबिल्ट है जीएसटी रेजीम के अंदर, उसमें उनको ट्रांजिशन करनी होगी। तो शॉर्ट टर्म में मतलब है कुछ दिक्कतें आएंगी, मगर इसमें कोई मतलब मुझे डाउट नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये सारी एंटरप्राइजेज जो है दे विल फॉल इन लाइन और ये इकोनॉमी के लिए और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपको क्या, दूसरा सवाल सर आपसे ये जानना चाहे कि आपको क्या ये लगता है कि जो 10 लाख का थ्रेशोल्ड रखा जा रहा है लिमिट जीएसटी के लिए वो सही है या उसे बढ़ा के 25 लाख किया जाए जैसा कि काफी डिमांड आ रही है? ये स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए ये कितनी बड़ी चीज है? देखिए, वो भी एक ट्रांजिशन का हिस्सा है। इस समय जो है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को मिसाल के तौर पे जो एक्साइज है उसमें टर्नओवर अगर उसकी 1.5 करोड़ तक की है तो सेनवैट से एग्जेम्पशन है। तो इस तरह की जो है एग्जेम्पशंस कुछ अवेलेबल हैं जो कि नए जीएसटी रेजीम के अंदर अवेलेबल नहीं होंगी। जहाँ तक मेरी समझ बताती है कि जो एरिया स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस हैं वो भी शायद नहीं होंगी अवेलेबल। तो ये सब ट्रांजिशन के मुद्दे हैं और आई थिंक इसी वजह से जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि आज ये अमेंडमेंट बिल पास किया गया है। आगे काफ़ी चीज़ें जो है वो मशवरे से, स्टेट गवर्नमेंट के मशवरे से और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके व्यू पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो फाइनली जो रेजीम लाई जाएगी उसमें वो सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। जी, इस पूरे डिस्कशन में वृंदा जागीरदार आप हमारे साथ बनी रही काफ़ी देर तक, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी आलोक ने एमओएस फाइनेंस अर्जुन मेघवाल से बात की है, आइए आपको वो सुनाते हैं। सर हाँ, हमारे साथ एमओएस फाइनेंस अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। सर सबसे पहले बधाई जीएसटी पास करने के लिए। और सर ये जो मेजर चेंज होगा टैक्स रिफॉर्म में कितना बड़ा बदलाव होगा सर? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव होगा और मुझे लगता है कि जीएसटी पास होने के बाद आज का दिन भी ऐतिहासिक है और ये लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए भी ऐतिहासिक है। और जिस तरह का टैक्स रिफॉर्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण हम लाना चाहते थे उसमें आज सरकार सफल हुई है। सभी दलों का इसमें सहयोग मिला है, सभी सरकारों का इसमें सहयोग मिला है, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। यस सर, सहमति बनाने में सरकार ने बहुत सफलता हासिल की। इस सहमति बनाने के पीछे कितना मेहनत लगा होगा आप बताइए, क्योंकि कांग्रेस देखिए ये बड़ा मुद्दा था, लेकिन लोकतंत्र में सहमति बनाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और जो पार्टी पावर में होती है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सहमति बनाए और उसमें हम सफल हुए। आखिरी सवाल सर, ये बिल कब से लागू होगा और इसके क्या कब तक उम्मीद? अभी वित्त मंत्री जी ने कहा है जितना जल्दी, क्योंकि ये लोकसभा में फिर चेंजेस के साथ जाएगा और उसके बाद फिर राज्यों से रेटिफिकेशन होगा। जल्दी हम कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है। हमारा टारगेट जल्दी लागू करने का है। शुक्रिया जी मीडिया से बात करने का शुक्रिया। ये हमारे थे अर्जुन मेघवाल जिन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस कानून को लागू करने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन जेमन जोश के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया दिल्ली। तो सभी की प्रतिक्रिया आ रही है जीएसटी बिल पास होने के बाद। इनफैक्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने क्या कहा बिल पास होने के बाद, उनसे बात की हमारे सहयोगी आलोक ने ही।
जीएसटी बिल लागू करने जीएसटी बिल से जुड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आज राज्यसभा ने पास कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम जी। सर, ये जो आज बिल पास हो गया सर, बहुत सहमति से पास हुआ, तमाम जो विपक्ष की सहमति थी। अब इस बिल का आगे का भविष्य क्या होगा सर? अब ये भविष्य इसके बाद स्टेट्स को 50% ऑफ स्टेट्स को पास करना है ऐसे, फिर उसके बाद जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होगा और फिर जीएसटी काउंसिल लेजिस्लेशन लाएंगे, जीएसटी का सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। तो काफ़ी मतलब टाइट टाइमलाइन है, पर द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अप्रैल 1 के पहले अप्रैल 1 इसको इम्प्लीमेंट करें। तो हाँ, तो देयर आर सम स्टेप्स टू बी फॉलोड। हाँ, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का यही बात थी कि बार बार कि वो स्टिक कर रहे थे कि जीएसटी रेट को कैप करो या 18% से ज़्यादा नहीं हो। ये वही रेट सजेस्ट जो आपने किया हुआ है, अपने रिपोर्ट में किया हुआ है। इस रेट को किस तरह से आप लोग इस रेट पर आए और जो कांग्रेस इस पर डिमांड कर रही है? नहीं, हम इस रेट पे आए काफ़ी मतलब एनालाइज करने के बाद हम रिपोर्ट लिखने में काफ़ी 3-4 महीने लगे। और बट ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने एक रेट नहीं रेकमेंड करी, हमने एक रेंज रेकमेंड करी between 17 and 19%. And also ये जो रेट हमने रेकमेंड करी, it's based on a number of policy choices, assumptions. जैसे अगर क्या गोल्ड की होगी, कॉम्पनसेशन में क्या डिसीजन होगा, कितना कॉम्पनसेशन होगा, सेस का क्या होगा, एंड ऑल दीज डिसीजंस वो जो है जीएसटी काउंसिल लेंगी। तो एंड स्टेट्स का भी अपना खुद का एस्टिमेट है। तो आई थिंक अगले महीनों में ऑल ऑफ अस हैव टू सिट डाउन की एंड कंपेयर क्या क्या हमारी एनालिसिस है, क्या डेटा थी, क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करेंगे जीएसटी काउंसिल, उसके बाद रेट पता चलेगा। सर, राज्यों की जो आशंका है कि इतना कम रेट रहने से 18% ये जो रेंज सजाया गया, इससे उनका नुकसान होगा, उस पर आप कितना कहेंगे? क्योंकि वो लोग हायर रेट चाहते हैं। देखिए, इसमें यह है कि एक तो इट डिपेंड्स वेरी मच ऑन अगर आप एग्जेम्पशंस कम करेंगे, बेस बढ़ाएंगे तो रेट कम होगा। पर इसमें एक और चीज़ ये है कि आई थिंक देयर इज ऑल्सो अ सर्टन एंग्जाइटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि हमको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वी आर मूविंग इनटू अ वेरी न्यू रेजीम। तो काफ़ी अनसर्टनिटी रहता है, थोड़ा नर्वसनेस रहता है। सो आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल कि स्टेट्स जो हैं कि दे वांट अ हायर रेट जस्ट टू मेक श्योर। पर हमारे रिपोर्ट में हम कहते हैं कि कि इसमें बहुत कंप्लायंस एफिशिएंसी बेनिफिट्स हो सकते हैं, और कॉम्पनसेशन कैसे ट्रीट करना। तो आई थिंक बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जैसे एम्पावर्ड कमेटी ने 2 प्रिंसिपल अडॉप्ट किए जो एफएम ने बताया कि एक तो है कि जो अभी रेवेन्यू है डेवलपमेंट के लिए, जो रेवेन्यूज चाहिए उसको प्रोटेक्ट करना है, बट द एम विल बी कि जितना लो करे टैक्सेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही 2 ऑब्जेक्टिव्स को जगल करेंगे सब लोग नेक्स्ट फ्यू। आखिरी सवाल कि राज्यों को लगता है कि इससे क्या महंगाई बढ़ने की भी आशंका है जैसे विपक्षी पार्टी? हाँ, तो वो दैट इज़ अ लेजिटिमेट कंसर्न, तो उसको भी देखना पड़ेगा। शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम बताते हुए कि जो जीएसटी रेट जो तय होगा आगे उस पर विचार विमर्श होगा, लेकिन जो उन्होंने रेंज सजेस्ट किया है इसी को ध्यान में रखते हुए किया है ताकि राज्यों को भी नुकसान न हो और साथ ही साथ महंगाई बढ़ने की आशंका भी न हो। कैमरामैन जैजब जोसेफ के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। बात करते हैं चंद्रजीत बैनर्जी से, डीजीसीआई। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी बिजनेस पर जीएसटी लागू हो गया है, अब देश माफ कीजिए जीएसटी पास हो गया, अब देश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है? देखिए, एक तो बहुत ही ये एक टैक्स के लिए ये एक सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो हम हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, एक तो ये एक यूनिफाइड मार्केट इंडिया में लेके आएंगे और विच विल मेक थिंग्स सो मच मोर कम्पिटिटिव। इतना कम्पिटिटिव हो जाएंगे क्योंकि एफिशिएंसी एक तो है टैक्स एफिशिएंसी जो लेके आएंगे, सब टैक्स सब्स्यूम करके, वो एक चीज़ देखने हम उम्मीद कर रहे हैं। और सेकंड, अब हमको जो आपको अभी मैंने बताया कि जो यूनिफाइड मार्केट के लिए जो उनका जो बेनिफिट हम जो देखेंगे वो भी हमको हमारे गुड्स को
काफ़ी कंपेरेटिव बना देंगे। और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, वहाँ से भी हम देखेंगे ये जो ट्रांसपेरेंसी जो ये लेके आएंगे, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम में वो एक बहुत ही चेंज इसके साथ हमको, और एफिशिएंसी के साथ साथ एक जो लेस हम जो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बात करते हैं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, वो बिल्कुल लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इनफैक्ट जीएसटी लागू होने के बाद अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें कैसी ग्रोथ देखते हैं आप? देखिए, आपका दूसरा सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ। जो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा इंडस्ट्री को किस बारे में फ़ायदा हो रहा है? इंडस्ट्री को इस बारे में फ़ायदा हो रहा है कि गुड्स प्रोडक्शन सिस्टम एफिशिएंट बन जाएंगे, गुड्स कंपेटिटिव बन जाएंगे। गुड्स कंपेटिटिव अगर जब बन जाते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम जब एफिशिएंट हो जाते हैं, तो फ़ायदा किस में होते हैं? प्राइस में होते हैं। प्राइस में होने के बाद किसका बेनिफिट जाते हैं? कंज्यूमर को बेनिफिट जाते हैं। सो एक्चुअली ये बेनिफिट अगर हम देखते हैं तो ये सबके लिए बेनिफिट होते हैं, बोथ फॉर कंज्यूमर एज वेल एज फॉर द प्रोड्यूसर। सेकेंडली, आप जो बता रहे हैं कि कैसे इसमें बेनिफिट आएंगे इंडस्ट्री के लिए, देखिए, एक नंबर वन जो हमने बताया कि ये जो टैक्सेशन में हम देखेंगे, एक तो ये वाइडर स्प्रेड हो जाएंगे टैक्स में। वाइड टैक्स टैक्स नेट जब हमको हमारा वाइड हो जाते हैं तो हम देखेंगे कि रेवेन्यूज़ में जो आएंगे गवर्नमेंट के लिए हमारे जो काफ़ी ज़रूरी है, टैक्स में टैक्स रेवेन्यू में एक बयानसी जो बोलते हैं हम, वो आ जाएंगे। और सेकेंडली, ये जो एफिशिएंसी हम देखेंगे जो लेके आएंगे, इसमें से हमारे जो आज इंडिया में बिजनेस करने के लिए ये जो जिसके बात हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इसका एक महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन रह जाएंगे। और सो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, एफिशिएंसी, टैक्स रेट्स, टैक्स स्ट्रक्चर को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, सो सभी में हम जीएसटी से फ़ायदा देखते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम जो देखते रहे कंट्री के लिए, जो हम हमारे हिसाब से हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1.25 to 2% इस बैंड में हम उम्मीद करते हैं ग्रोथ को ये एनहांस कर सकेंगे। अगर 1.25 से 2% रेट ग्रोथ रेट जीएसटी के लिए आएंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना बेनिफिट ये कंट्रीज़ के लिए और सभी के लिए ये लेके आएंगे। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट सुनील कनोरिया जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि एक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी वेलकम स्टेप है ये, और इनफैक्ट जब हम एक ओवरऑल ग्रोथ, खासतौर पर मैन्युफैक्चर सर्विस सेक्टर के एक ग्रोथ की बात करते हैं, तो कितना इम्पैक्ट और कितना इफेक्ट आप देखेंगे और कितने समय तक? बेसिकली प्रो इंडस्ट्री है नहीं, ये तो कॉमन मैन के लिए कि आज जो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स तो हर लोगों को देना पड़ता है। आज के दिन अगर हम देखें कि जो चाहे आप सेंट्रल टैक्स ले लीजिए, स्टेट टैक्स वैट ले लीजिए, सर्विस टैक्स ले लीजिए, ये सब मल्टीप्लाई करके जो इम्पैक्ट आता है आज एक कॉमन मैन को, तो ओवरऑल कॉस्ट तो भर ही रहा है। अगर ये आज इसे एक यूनिफॉर्म जीएसटी में ले आएँ तो फॉरगेट इंडस्ट्री के लिए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, लेकिन मेन तो इसका फ़ायदा होगा टू द कॉमन मैन। और ओवरऑल इकोनॉमिक में जो ग्रोथ होगी, जो टैक्स की बढ़ोतरी होगी, गवर्नमेंट के पास में फंड ज़्यादा रहेंगे तो डेवलपमेंट में खर्ची हो सकती है। तो ओवरऑल हर चीज़ पहलू में अगर अपने देखें तो इसका बेनिफिट ही है, नुकसान तो इसका कहीं है ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपसे और बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक्चुअली माधव लाल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। एमएसएमई सेक्टर में कैसे इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा? इनफैक्ट राजेश जी, आप बता रहे थे, आप सर आप काफ़ी देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहें कि एमएसएमई सेक्टर्स को इससे जो सबसे बड़ा दिक्कत होता था कि क्रेडिट का दिक्कत होता था उनको, टैक्सेशन में मल्टीपल लेवल पर टैक्सेशन, इंस्पेक्टर राज से वो काफ़ी परेशान होते थे, जीएसटी आने से उन्हें कितना फ़ायदा होगा? और दूसरा चीज़, अगर सरकार अप्रैल 2017 से इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचती है तो क्या एमएसएमई सेक्टर इसके लिए तैयार हो सकती है? क्या वो इसे 2017 से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? देखिए, पहले भी मैंने कहा कि ये जो ट्रांजिशन है उसमें एमएसएमई सेक्टर को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा काफ़ी हद तक। ये जो सिस्टम अब लागू होने वाला है,
ये काफ़ी आईटी डिपेंडेंट होगा और जो एमएसएमईज जो है आईटी एडॉप्शन अभी तक नहीं किया है, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक इन टर्म्स ऑफ इन्वॉइसिंग, इन टर्म्स ऑफ टैक्स के जो उनको सेट ऑफ्स लेने हैं उसके लिए उनको अडेप्ट करना होगा। और ये सब मेरे ख्याल में अभी से अगर वो करना शुरू करेंगे तो जब ये टैक्स लागू होता है अगले फाइनेंशियल ईयर में तो वो अपने किसी ठीक तरह से इन चीज़ों की कंप्लायंस कर सकेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्योंकि बिल्कुल एक नई टैक्स रेजीम आ रही है जिसमें सिस्टम्स दूसरी तरह से ऑपरेट करेंगे, तो इसमें काफ़ी चेंजेस भी आएंगे। मतलब है इंडस्ट्री के अंदर और वैल्यू चेन्स के अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे और ये हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए कि कुछ एमएसएमईज जो हैं वो ग्रो करेंगी, कुछ एमएसएमईज जो है वो उनको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। एक तरह का मिक्स्ड इफ़ेक्ट होगा एमएसएमईज के ऊपर और वो लार्जली इस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से इस नए जीएसटी सिस्टम में अपने आप को अडेप्ट करती हैं। बिल्कुल, तो ओवरऑल एमएसएमई सभी सेक्टर्स को फायदा होगा, इंक्लूडिंग एमएसएमई सेक्टर्स को। शुरुआत में उन्हें थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में उनके लिए फायदे का बिजनेस होगा। जी राजेश जी, आपसे इनफैक्ट मैं जानना चाहूंगी, अब बिल तो पास हो गया है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन तक की जो एक टाइम फ्रेम है उसमें अब कौन कौन से प्रोसीजर से होते हुए बिल गुजरे? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अभी राज्यसभा से पास हुआ। जो अमेंडमेंट हुए हैं ये अभी फिर लोकसभा में जाएंगे, तो इस सेशन में यानी 12 अगस्त से पहले लोकसभा से भी पास हो जाएगा। उसके बाद हर राज्य को अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना होगा। तो वो सरकार की ऐसी आशा है कि नवंबर से पहले हर राज्य कर लेंगे। ऐसे अगर 2/3 से ज्यादा राज्य कर लेते हैं तो ये एक बड़ा विन होगा। उसके बाद फिर नवंबर में जीएसटी बिल जो है वो लोकसभा में और राज्यसभा में, पार्लियामेंट में पास होगा। और जैसा कि उस पर अगर डिस्प्यूट ना हो कि वो मनी बिल सरकार बना रही है या फाइनेंस बिल के रूप में पास होगा, जानना चाह रही थी क्योंकि इस पर एक हो सकता है कि रोड़ा अटक जाए। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो अटकता है अगर सरकार उसे मनी बिल बना लेती है तो नहीं अटकेगा, क्योंकि मनी बिल में फिर राज्यसभा में पास करने की जरूरत नहीं है, उन्हें ऑटोमेटिकली पास करना होगा। अगर सिर्फ लोकसभा में सरकार की मेजोरिटी है वो पास हो जाएगी, तो वो बिल पास हो जाएगा लोकसभा से और उसके बाद फिर इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। फिर हर राज्य उसे अपने इंप्लीमेंटेशन का, लेकिन साइमल्टेनियसली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑलरेडी काम हो रहा है। इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो डेवलप कर रहे हैं। जीएसटीएन ऑलरेडी 10 राज्यों के साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है, उनके कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर अप्रैल से लागू नहीं हुआ तो भी सरकार चाहेगी कि मिड सेशन में यानी अक्टूबर से, जैसा कि वैट के केस में हुआ था कि मिड सेशन से उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ आशा ये कर सकते हैं अगर अप्रैल से नहीं हुआ तो अक्टूबर 2017 से जीएसटी फाइनली लागू हो सकता है।